हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को करेंगे इस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें हम और वाला पार्ट भी करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Express 2.356 in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0. So here we first see that there is only bar on 5 and 6. The question has given 2.356 and bar is on only 5, 6. So let take x will be equal to 2.356 because the term which contain the bar will repeat itself. So here the 5, 6 will repeat. I will tell you the most easiest way to do this question. First take the number which don't contain a bar. We have to multiply with that multiple of 10. So here only 3 don't have a bar. So first we will multiply it with 10. So it become 10x equals to 23.5656 कंटिन्यू। अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें पॉइंट के बाद वाली टर्म सेम करके फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में पॉइंट के बाद 5, 6, 5, 6 है, पर फर्स्ट इक्वेशन में 3, 5, 6 फिर 5, 6 है। तो हमें एक दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास जितनी टर्म्स के ऊपर बार थे उतने से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें दो टर्म के ऊपर बार थे तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 के ऊपर होते तो हम 1000 के साथ करते। तो अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट बिकम 10 मल्टीप्लाइड 100 will become 1000x and on this side it will 2356.5656 continue. It will become our third equation. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट के बाद हमें देखना है कि सभी टर्म सेम है और हमारी सेकंड और थर्ड में सभी टर्म सेम आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड टर्म को थर्ड से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। जब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो हमारी सेकंड में क्या थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1000x माइनस 10x विल बी इक्वल टू 2356.5656 डॉट 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 माइनस 23.5656 कंटिन्यू। सो इट विल बिकम 990x विच विल बी इक्वल टू, पॉइंट के बाद सब सेम है तो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो। 2356 माइनस 23 विच विल बी इक्वल टू 3332 विच विल बी इक्वल टू 2333। सो एक्स वैल्यू बिकम 2333 अपॉन 990. This is the best way to solve this question. Now we will try the OR question also in which they have given 4. अब हम दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 पावर x माइनस 1 which will be equal to 384. We have to find the value of x here. So first we break these all. 4 is 2 square. So we can write it in form of this 2 power 2 bracket 2x minus 1. Then 16 we can write it form of 2 power 4 bracket x minus 1. And we have first write 384 as it is. Okay. So let's start. 2. Here the power will be multiplied. So it will become 4x minus 2. Now minus 2 4x minus 4 which will be equal to 384.
अब देखिए, अगर हम यहाँ से पावर कॉमन ले लें, 2 की पावर 4x माइनस 4 कॉमन ले लें, पर हमारे पास फर्स्ट में -4 नहीं है, -2 है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2, -2 + 2 विल बी -4 + 2 will be -2. So we can write in this method -1, which will be equal to 384. Here we can write 2 4x minus 4 bracket 2 power 4 2 power 2 4 minus 1, which will be equal to 384. 2 power 4x minus 4 bracket 3, which will be equal to 384. Now we will divide these 3 on the other side. So 384 divided by 3, it will become 120. Okay, 2 power 4x minus 4 is equal to 128. We then factorize 128. To 34 or 64, to again 32, to 16, to 8, to 4, to 1. So the power of 2 will be 1 2 3 4 5 6 7 times 2 की power 7, or here it was 2 power 4x minus 4. Base same. Now we have to compare the power 4x minus 4, which will be equal to 7. So then 4x equals to 11. X will be equal to 11 by 4. This was our answer. Now we are doing our second question. Wait for a while. Our next question is, if a square plus 1 upon a square is equal to 31, this is given. We have to find the value of a minus 3 upon a. Here it is 9. Okay, we have to find this value. So let's start. We know a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus 2ab. So using this method, we apply this in a minus 3 upon a. A minus 3 upon a whole square, which is equal to a square plus 9 upon a square plus minus 2 multiply a multiply 3 by a. So a will cancel a here, and in the question itself the value of a plus 9 upon a square plus 9 upon a square was given, which was equal to 31. So simply put this value. We know this value as it is given in the question. Minus 2 3s are 6, 31 minus 6, which will be equal to 25. We have to find the value of a minus 3a, and here in the question a minus 3a whole square will be equal to 25. So here a minus 3a 3 by a will be equal to under root 25, which will be equal to 5. So next answer was 5. Now we'll solve the 23rd question, in which x plus 1 is a factor of polynomial ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 9. So we can do this. We have to find the value of a here. Okay. For the value of a, as they have given x plus 1 is a factor. So x1 plus will be equal to 0 and x value will be here minus 1. We have to put the value of x in the equation. Let's start putting it. A minus 1 cube plus minus 1 square minus 2
-1 प्लस 4a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो हेयर अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो हेयर -1 का क्यूब कर रहे हैं तो हम आंसर आएगा -1a क्यूब, -1a। देन अगर हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, तो +1 माइनस माइनस +2 प्लस 4a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ 1 + 2 3, 3 + 9 12 plus 4a minus 1a, it will be plus 3a which is equal to 0. So 3a equals to -12. a will be -12/3 which will be -4. a की वैल्यू आएगी -4। अगर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट भी सेम होगा। इसने कहा है कि ये पॉलिनोमियल है और ये हमें 1 - 2x के साथ डिवाइड करना है, तो 1 - 2x फैक्टर होगा और उसके इक्वल में हम 0 पुट कर देंगे तो -2x इज़ इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। x की वैल्यू जो हाफ आई है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू हमारी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। आप ये चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना कि x + 1 उसका फैक्टर था तो x + 1 इज़ इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की जो -1 वैल्यू आई है उसे हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस, इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस करो 7y - 4 इज़ इक्वल टू x/8/3x। इसको हमें एक्स फॉर्म में लगाना है, ax + by + c की फॉर्म में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 8/3x - 7y + 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ a के बाद x था, यहाँ x के पहले क्या है 8/3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अब यहाँ पे by था, यहाँ पे क्या साइन है, b की वैल्यू आ जाएगी -7। by था -7y, y से y कट गया तो वैल्यू लिख देना और c की वैल्यू आएगी +4। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, हमें बस कंपेयर ऐसे ही करने होते हैं। अब आते हैं हम लाइंस एंड एंगल्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये विजिबल होगा। सो लेट, दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और एक ऐसे लाइन गई हुई है। इधर ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 135 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने कहा है कि PQ लाइन पैरेलल है RS के और ये पॉइंट के, ये है Y पॉइंट, ये है X पॉइंट और ये है M पॉइंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XMY। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी लगेगा। आपको निकालना है XMY, XMY बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, हम इसमें दो स्टेप कर सकते हैं। एक हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको इसके 2-3 स्टेप बताती हूँ, आपको इजी होगा आपके लिए करना। मैं आपको बताती चली हूँ, आप ये करते रहना, ठीक। अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया तो ये देखो ये 135 है, तो इस साइड वाला एंगल निकल सकता है 180 - 135 विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। और अब अगर हम देखें तो ये ऐसे Z फॉर्म हो गया, जहाँ पे भी Z फॉर्म होगा वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये 45 का आ गया, ये हमें 40 का दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल। सो इन दोनों का सम कर दो, उसके इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये कितना होगा 40 + 45
85 डिग्री का ये एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। मैं आपको थोड़े और वो बताती हूँ, एक मिनट, मेरा इरेज हो रहा है। मैं आपको और स्टेप बताती हूँ कि हमारे पास और भी मेथड है इसे करने के लिए। ये था, हमारे पास ये था, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इधर से लीनियर इक्वेशन लगाना, नीचे नीचे लीनियर इक्वेशन लगाओगे तो ये 140 हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो यहाँ पे एक लाइन खुद ड्रॉ कर लेना, पैरेलल लाइन। ये 40 था तो ये 40। अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी, को इंटीरियर एंगल से हो रहे हैं ये क्वेश्चन। ये 135 था तो ये 45, ये भी को इंटीरियर एंगल लगा दोगे दोनों साइड तो ये पूरा आ गया 85 का। ठीक, 2 मेथड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और उसके साथ करना होगा। आज का हमारा यही था, 2 मार्क्स के हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए। थर्ड सेक्शन की वीडियो भी जल्दी आएगी।